Hello students, in the last class we studied about Ohm's law and at the end of our lecture we were discussing the resistance of a conductor. So just to remind you once again, this is a piece of conductor having length L, cross sectional area A, and it is made up of a material which has resistivity rho. So such a cylindrical piece of material has resistance given by rho L by A. Longer the wire, higher will be the resistance. Thicker the wire, lesser will be the resistance. Thicker wire means higher cross section. So lesser is the resistance. And resistivity, a material which has got very high resistivity is actually not a conductor. It is known as an insulator. Any material which has got very high resistivity will be called as insulator. The resistance of even a small piece of such material might be very high. A material which has got small resistivity are conductors. Copper, aluminum, gold, silver, all metals basically are good conductors of electricity. Their resistivity values are quite small. Inverse of resistivity is known as electrical conductivity, denoted by sigma. 1 by rho is known as conductivity of the material. ये ऐसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. This expression can also be written like this. Just for an example, resistivity of copper is somewhat around, it is of the order of 10 to the power minus 8 ohm meter. Resistivity of copper is of the order of 10 to the power minus 8 ohm meter. So conductivity, if you wish to calculate conductivity of the copper, it will be 1 upon rho, roughly around 10 to the power 8. In practical life, almost all electric circuits require something known as resistors. What exactly are resistors? Resistors are resistances of specified value. For example, I want a piece of material having electrical resistance of 25 ohm. Unit of resistance is known as ohm. So if I want a piece of material which has a resistance of 25 ohm, I will have to design using this particular expression. Suppose I choose copper for making my resistor, let us assume. So resistance value is 25 ohm. Value of rho for copper is this much. So I will select L and A so that this number becomes 25 ohm. So resistors are basically resistances of specified value, known value, pre-decided value. Give me a 25 ohm resistor, means the seller will give you a piece of material which has got resistance of 25 ohm. Now the resistors are mostly of two types. One is wire made, just a piece of wire, nothing else. It is a resistance. And wire made resistors which you commonly find in your laboratory instruments like potentiometer, meter bridge. ऐसा हम लोग इसी चैप्टर में आगे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. आपके स्कूल के लैब में ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं and they use resistances which are in form of wires. Simply a conducting wire is nothing but a resistance. So wire made resistors are mostly made of alloys like nichrome, manganese, constantan, etc. So these are few alloys which are commonly used to make wire resistors. इन alloys को basically use किया जाता है for various reason, and the most significant is as we will study soon that resistivity of material changes with temperature. जैसे copper है तो copper की resistivity की value exactly इतनी नहीं होती है, depends on temperature. Higher the temperature, higher is the resistivity.
but these alloys are materials which do not see much variation in their resistivities when temperature fluctuates. टेम्परेचर में 5, 10, 15, 20 डिग्री सेल्सियस चेंज होने से इन मटेरियल्स के रेजिस्टिविटी वैल्यूज़ में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता है. सो दीज आर फेवर्ड मटेरियल इफ़ यू विश टू मेक resistors using wires. In almost all electronic circuits these days, we use a different kind of resistor, carbon resistor. Carbon resistors are basically made of powdered carbon and some ceramic material. कार्बन के पाउडर और कुछ सिरामिक मटेरियल को मिक्स करके कार्बन रेजिस्टर बनाए जाते हैं एंड दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट खोल के देखेंगे, मोस्ट लाइकली यू विल फाइंड सम रेजिस्टर्स इन इट. देयर आर स्मॉल सिलिंड्रिकल पीसेस विथ 2 लीड्स कमिंग आउट ऑफ देम. ये कनेक्टिंग लीड्स हैं. इतना बड़ा सिलेंडर नहीं होता है, बहुत छोटा सिलेंडर है जिसके ऊपर आपको कुछ ऐसे कलरफुल बैंड्स दिखेंगे. एक छोटा सा सिलेंडर, उसके ऊपर कलरफुल बैंड्स दिख रहे हैं और उसमें 2 लीड वायर्स हैं. ऐसा किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आप देखें तो दैट इज डेफिनेटली ए रेजिस्टर, कार्बन रेजिस्टर. इवन अ वेरी स्मॉल कार्बन रेजिस्टर कैन हैव रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम, 10 to the power 6 ohm. So we can make large resistances using very small amount of carbon and ceramic. So these resistors consume less space. They can be fabricated in volume, large volume, quite easily. तो ये आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं इस तरह के रजिस्टर सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में. इनका साइज़ इतना छोटा होता है कि अक्सर आप देखेंगे इस पर इतनी जगह भी नहीं होती कि आप लिख सकें कि ये कितने ओम का रजिस्टर है. 50 ओम ऐसा लिख देते तो बहुत अच्छा था, बट इनका साइज़ यूजुअली इतना छोटा होता है कि लिख देंगे तो भी आप पढ़ नहीं पाएंगे. फिर आपको एक लेंस यूज़ करना पड़ेगा उसको पढ़ने के लिए. तो एक कलर कोडिंग स्कीम बनाई गई है. ये जो कलरफुल बैंड्स हैं इनको देखकर हम समझ सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, इस रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है. तो इस कलरफुल बैंड को देखकर रेजिस्टेंस की वैल्यू समझने के लिए आपको ये टेबल याद होना चाहिए. ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट. यहाँ जगह नहीं थी मैंने इसलिए यहाँ लिख दिया. वायलेट के बाद नेक्स्ट ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर. ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5th नंबर, ये 6th नंबर, ये 7th नंबर, ये 8th नंबर. एंड द सेम टेबल कंटिन्यूज. दिस इज 9th नंबर, this is 10th color, this is 11th color, and this is 12th color. So these are 12 colors which are used in bands over a resistor. एक रेजिस्टेंस के ऊपर जो कलरफुल बैंड्स होते हैं उसमें इन्हीं कलर को यूज़ किया जाता है. अब जैसे यहाँ जो मैंने रजिस्टर ड्रॉ करके रखा है इसमें जो पहला कलर, पहले 2 कलरफुल बैंड हैं ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को बताते हैं. जैसे इस पर्टिकुलर ड्राइंग में मैंने पहले से बना के रखा हुआ है ताकि आप इसको समझ सकें. ये रेड बैंड है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो रेड कलर्ड बैंड. तो हम इस टेबल में देखेंगे कि रेड स्टैंड्स फॉर डिजिट 2 एंड देन द नेक्स्ट बैंड इज ग्रीन कलर्ड. दिस अ ग्रीन कलर्ड बैंड. और इस टेबल में हम देखेंगे ग्रीन कलर इज बेसिकली कलर स्कीम यूज टू डिनोट दिस डिजिट 5. सो दिस रेड इज 2 एंड दिस ग्रीन स्टैंड्स फॉर 5, राइट. सो these are 2 significant digits in the value of this resistance, 2 and 5, 25. Blue, the third color, the third band is basically telling you the multiplier value. यहाँ मैंने ये मल्टीप्लायर का कॉलम बनाया है. फॉर एग्जाम्पल द थर्ड बैंड इज ब्लू इन कलर,
So blue has a multiplier value of 10 to the power 6. So multiply this with 10 to the power 6. तो ये जो रेजिस्टेंस है ये 25 इंटू 10 टू द पावर 6 ओम का रेजिस्टेंस है. कैसे समझना है? ये रेड और ग्रीन पहले जो दो कलरफुल बैंड्स हैं उनसे आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स पता करेंगे. इसमें दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपको यहां से मिलेंगे. रेड स्टैंड्स फॉर नंबर 2, green stands for number 5. So 2, 5, these are two significant digits. And then the third band tells you the multiplier, 10 raised to the, this should be multiplied with a multiplier, 10 raised to the power something. वो क्या है? Blue color stands for a multiplier value of 10 to the power 6. So this is 25 into 10 to the power 6 ohm resistor. Now the last one, the last band which I have drawn in black, it is not actually black. It is either golden in color or it is silver in color. It is either golden in color or silver in color. If this band, this last band is golden in color, if this is golden in color, then it tells you that tolerance is 5%, which means this resistance, best known value of this resistance is so many ohms, but there could be an error of 5%. So what is value of this resistor? It is 25 into 10 to the power 6 ohm plus minus 5%. The last band, if it is golden in color, it tells you that the tolerance is 5%. That means error in this value could be 5%. If this one is silver colored, the last band is silver colored, then tolerance is 10%. That means resistance value is this much plus minus 10%. ठीक बात है. इस चार्ट को प्लीज ठीक से लिख लीजिए कॉपी में. ये डिजिट्स, ये मल्टीप्लायर और यहां भी ये डिजिट्स और ये मल्टीप्लायर है. ग्रे के लिए डिजिट, अगर यहां पे ग्रे कलर है, ग्रे कलर का बैंड है तो उसको हम पढ़ेंगे 8. और अगर ये तीसरा बैंड ग्रे होता उसका मतलब मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 8. अगर ये वाइट कलर का बैंड है, पहला या दूसरा, तो वहाँ पे डिजिट है 9. जैसे वाइट होता तो ये 2 और ये 9, 29. या वाइट बैंड यहाँ पे है तो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 9. सिमिलरली गोल्ड डिजिट्स में नहीं होते, गोल्ड और सिल्वर, पर मल्टीप्लायर में हो सकते हैं. अगर ये तीसरा बैंड गोल्डन होता तो मल्टीप्लायर होता 0.1. दैट मीन्स 25 इंटू 0.1. अगर तीसरा बैंड सिल्वर होता तो मल्टीप्लायर होता 0.01. तो ये स्कीम बनाई गई है जिससे कि आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को पढ़ सकते हैं. आपके स्कूल लैब के एग्ज़ाम में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक आपको रेजिस्टेंस दे दिया और बताना है कि उसकी वैल्यू क्या है. जेई मेन के एग्ज़ाम में भी ऐसा क्वेश्चन किस दिन पूछ सकते हैं. ये बना हुआ है. अब वो कलरफुल डायग्राम तो नहीं बना के देंगे, लिख देंगे. यहाँ पे लिखा होगा कि दिस बैंड इज रेड कलर्ड, दिस इज ग्रीन कलर्ड, दिस ब्लू कलर्ड, दिस गोल्डन कलर्ड. टेल मी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर. व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर. As I said that there are two kinds of resistors, wire made resistor and carbon resistor. In this particular chapter, most of the time we will be dealing with this kind of resistor, wire made resistors. We will be dealing with this kind of resistance, wire made resistance. So when I say resistance in this particular chapter, most of the time I will be referring to this kind of resistor. Simply a piece of wire, nothing else. A wire made up of any metal or this kind of alloys. इस चैप्टर में जब भी मैं रेजिस्टेंस बोलूँ, रजिस्टर बोलूँ, तो मोस्ट लाइकली आई एम रेफरिंग टू दिस काइंड ऑफ रेजिस्टेंस. इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे. तो हियर ऑनवर्ड्स व्हेन आई से रेजिस्टर, आई एम रेफरिंग टू वायर बेस्ड रेजिस्टर. यहाँ मैं आपको
just a minute. Though you know this, but still I will write. Symbol of a resistance in electrical circuit is known to you all. We represent a resistor by this symbol. वो रेजिस्टर किसी भी चीज़ का बना हो, वायर का बना हो या कार्बन रेजिस्टर हो, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट में हम इस सिंबल से दिखाते हैं। एक रेजिस्टर को एक बैटरी से जोड़ा है, तो ये रेजिस्टर के टर्मिनल्स हैं, इसको हमने ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि एक रेजिस्टर को एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है। तो दिस इज द सिंबल फॉर अ रेजिस्टर। ओके, आप जब अपने स्कूल के लैब में जाएंगे तो आपको वहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्सेस मिलेंगे, जिसमें आप किसी एक्सपेरिमेंट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को चूज कर सकते हो। तो इन जनरल रेजिस्टेंस बॉक्स का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ये मैं आपको मोटा मोटी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जैसा कि नाम है, इसमें एक ऐसा बॉक्स होता है। इस बॉक्स के ऊपर यहाँ पे एक कंडक्टिंग स्ट्रिप लगी होती है, थिक कंडक्टिंग स्ट्रिप। ऐसा ये किसी बढ़िया कंडक्टर का बना हुआ स्ट्रिप है, कॉपर हो सकता है, ब्रास हो सकता है, ये ऐसा एक प्लेट जैसी चीज है, थिक प्लेट जैसी चीज है, जो इसके ऊपर ऐसे ले की गई है। ये यहाँ पे एंड में ये कनेक्टेड भी है, ऐसे ही थिक स्ट्रिप से। ठीक है, दैट मीन्स मोटा मोटी ऐसा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक स्ट्रिप है, थिक कॉपर प्लेट है। ये वुडन बॉक्स के ऊपर एक थिक कॉपर प्लेट लगा हुआ है, और इस कॉपर प्लेट में आप देखोगे कि बीच बीच में कुछ कट्स बने हुए हैं। ऐसा कट बना हुआ है। इस कट में बिल्कुल फिट हो जाए ऐसा एक की लगा रहता है। ये कुछ ऐसा है, मेरी ड्राइंग बहुत बढ़िया नहीं है, प्लीज समझिएगा। ये जो कॉपर की स्ट्रिप है, कॉपर की रनिंग स्ट्रिप है, उस कॉपर की स्ट्रिप में बीच में एक गैप है। उस गैप में आप एक की को ऐसे प्लग इन कर सकते हो। ये गैप है और गैप में आप इसको ऐसा प्लग इन कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे गैप्स बने हुए हैं। ऐसा गैप मतलब ये डिसकंटिन्यूअस प्लेट है, कंटिन्यूअस नहीं है। ये ऐसा बीच में गैप बने हुए हैं। ये ऐसा गैप बना हुआ है। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। ऐसे गैप्स बने हुए हैं। ठीक है, मतलब ये जो प्लेट है ये पूरी कंटिन्यूअस प्लेट नहीं है, बीच में स्लॉट्स बने हुए हैं। दीज आर स्लॉट्स, और हर स्लॉट में ऐसी एक की है जिसको आप प्लग इन कर सकते हो। ये ब्रास की बढ़िया की है या कॉपर की है। ये प्लास्टिक का कैप लगा हुआ है इसमें, जिससे आप इसको पकड़ सकते हो, इसको खींच सकते हो ऐसे बाहर, और फिर इसको चाहो तो यहाँ पे फिट बैठ जाएगा। टाइटली फिटिंग की है, ये एकदम स्लॉट में टाइट बैठ जाएगा।
यहां पे दोनों एंड पे कनेक्शन के लिए दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, दो मेटालिक नॉब है जहां पे आप किसी चीज को बांध सकते हो, और इनके ऊपर कुछ ऐसा लिखा हो सकता है कि ये 10 ओम, 20 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम, ऐसा लिखा हो सकता है। इसका मीनिंग ये है कि ओरिजिनली जब आप जाओगे इस रेजिस्टेंस बॉक्स के पास तो हर एक स्लॉट में एक की लगा हुआ होगा, सभी स्लॉट भरे हुए हैं। और अगर आप एक बैटरी, मैं एक सिंपल बैटरी यहाँ पे ऐसा सिंबल से ही दिखा दे रहा हूँ, एक बैटरी से मान लो मुझे एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है, तो बैटरी के टर्मिनल से हम इन दोनों नॉब्स को कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्शन के लिए ही पॉइंट दिए गए हैं, वहाँ हम वायर को बांध देते हैं, स्क्रू है जिस पे हमने वायर को बांध दिया। अब ये जो मैंने एक की बनाया है, ये सभी स्लॉट्स में की लगे हुए हैं, मैंने एक ही बनाया है। सपोज मुझे इस एक्सपेरिमेंट में इस बैटरी के साथ 10 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, उसके लिए ये सभी नॉब्स, ये सभी कीज लगे हुए रहेंगे, सिर्फ ये जहाँ 10 ओम लिखा है इसको मैं निकाल दूंगा, इसको मैं बाहर निकाल दूंगा। तो इस 10 ओम को बाहर निकालने से यहाँ से लेके यहाँ के बीच में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। अगर मुझे 30 ओम रेजिस्टेंस चाहिए इस बैटरी के साथ जुड़ा हुआ, तो मैं एक 10 ओम और एक 20 ओम दोनों को निकाल दूंगा, 10 और 20 दोनों को निकाल दूंगा, तो इससे यहाँ से यहाँ के बीच में टोटल 30 ओम का रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। ये कोई जादू नहीं है, ये बड़ी ही सिंपल सी चीज है। एक्चुअली में ये जो थिक प्लेट लगाए गए हैं, ये जो थिक स्ट्रिप यूज हुई है, वो बहुत अच्छे कंडक्टर की स्ट्रिप है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत बड़ा है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। ध्यान देना, वायर जितना थिक होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तो ये जो ब्रास की या कॉपर की प्लेट ऐसे लगाई गई है, ऐसी प्लेट, इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत बड़ा है, तो थिक होने की वजह से इसका जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। तो इस पूरे स्ट्रिप का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। जब सारे कीज लगे हुए हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऑलमोस्ट हम ऐसा मान सकते हैं कि इस बैटरी के साथ जीरो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, बैटरी शॉर्ट सर्किट है। अगर ये सारे कीज लगे हुए हैं तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं, बैटरी शॉर्ट सर्किट है। लेकिन अगर आपने एक 10 ओम का रेजिस्टेंस, ये की निकाल दिया, तो यहाँ से यहाँ के बीच में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। कैसे आ गया? तो एक्चुअल में जो की का स्ट्रक्चर है वो बता रहा हूँ, देखिएगा, वो कुछ ऐसा है। ये कॉपर की स्ट्रिप है, इसका साइड व्यू बना रहा हूँ, इधर से देख रहे हैं, और ये आपकी की है, ये प्लास्टिक का कैप है, ठीक है। जब ये की यहाँ पे प्लग इन है, जब ये की और ये की सब, ये वाली यही चीज मैंने ऐसी बना दी, ये यहाँ पे प्लग इन है, ये पाथ रेजिस्टेंस फ्री पाथ है। ये थिक ब्रास या कॉपर की प्लेट है जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। लेकिन जब आप इस की को यहां से रिमूव कर देते हो, ये प्लास्टिक का कैप पकड़कर आपने इसको उठा दिया, तो यहां तो एक गैप क्रिएट हो गया, नो करंट कैन पास थ्रू दिस, ये तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया। बट फैक्ट ये है कि इस लकड़ी के बॉक्स के अंदर, जो आपको दिख नहीं रहा है, इन दोनों ब्रास स्ट्रिप के बीच में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। आज के ज़माने में ये कार्बन रजिस्टर भी हो सकता है, या एक वायर्ड रजिस्टर है, वायर का बना हुआ रजिस्टर है। ये 10 जो मुझे दिख नहीं रहा, ये बॉक्स के अंदर है। जब ये की प्लग्ड इन होता है तो ये रजिस्टर है, लेकिन कोई भी करंट जो यहाँ से आ रहा है
उसके लिए अब ये दो पैरेलल पाथ हो गए। ये जीरो रेजिस्टेंस पाथ है और यहाँ एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है। करंट ऑलवेज चूजेस लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, ऐसा आप जानते होंगे, अभी हम थोड़ी देर से पढ़ेंगे। तो यहाँ से जो भी करंट आ रहा है इट विल पास थ्रू दिस पाथ, इस पाथ में कोई करंट होगा नहीं। तो इफेक्टिवली ये एक जीरो रेजिस्टेंस की तरह है। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि अगर एक 10 ओम और 0 ओम रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी जीरो ओनली, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 से। यही कह रहा हूँ, ये जीरो रेजिस्टेंस है, पूरा नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस वाली स्ट्रिप है और ये 10 ओम है। तो अगर यहाँ से कोई करंट आएगा तो करंट ऐसे जाएगा ही नहीं, वो 0 ओम रेजिस्टेंस वाले पाथ में जाएगा। सो रेजिस्टेंस फ्री पाथ के ऊपर करंट जा रहा है, ये 0 ओम रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन जब आपने इस की को निकाल दिया तो ये तो वेकेंट स्पेस हो गया है, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया। अब कोई भी करंट जो यहाँ से आ रही है इट विल टेक दिस रूट, और करंट जब इस रूट को फॉलो करेगी तो इट विल सी एन रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। सो इफ यू रिमूव दिस की, a 10 ohm resistance is created. Actual में there is a resistance inside the box. So this is how a resistance box functions. और आप चूज कर सकते हो कि आपको कितने ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टर्स इज देयर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। Temperature dependence of resistivity, that means rho. Let us talk about conductors. For conductors like copper, aluminum, gold or silver, for conducting material it has been found that with rise in temperature the resistivity increases. With rise in temperature, the resistivity increases. Why? Can you make a guess? Any guess? The resistivity of a conductor increases with increase in टेम्परेचर। इसमें शायद थोड़ा बहुत डिस्कशन हमने पिछली क्लास में भी किया था, वैसे कुछ लोग गेस कर सकते हैं। द बेसिक रीजन इज with rise in temperature, the random thermal motion of electrons inside the conductor increases. With rise in temperature, the free electrons which are roaming here and there inside the piece of conductor starts moving at much higher speed. अगर एक कॉपर का वायर हम इमेजिन करें, उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गैस के मॉलिक्यूल्स की तरह यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया तो वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा स्पीड में उस कॉपर वायर के अंदर मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम गैप रिड्यूस हो जाता है। बिकॉज दे आर मूविंग एट हायर स्पीड, तो दे कैन मूव क्विकली फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो जिसको हमने रिलैक्सेशन टाइम कहा था लास्ट क्लास में, दैट रिलैक्सेशन टाइम increases, very sorry. With rise in temperature, the relaxation time increases. If the relaxation time increases, then the resistivity will definitely increase. If the relaxation time, I am very sorry, excuse me, with rise in temperature, the speed increases and relaxation time decreases. Very sorry. Electron takes lesser time to travel from one atom to another. So if the temperature is increased, average speed of random moving electrons increases, which means relaxation time
decreases. So frequency of collision increases. Electrons get much less time to increase their energy from the electric field. If you could recall, in the last class we said that if this is a copper wire or any conducting material wire, if we connect this to a battery, this battery establishes an electric field inside this wire. Now this electric field exerts force on each and every free electron present inside that copper wire. So because relaxation time has decreased, this force will accelerate the electrons, but only for a smaller period of time. क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम पे जल्दी पहुंच जाते हैं, कोलिजन जल्दी होता है. एक कोलिजन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ने उनको स्पीड अप किया और बहुत जल्दी वो दूसरे एटम से टकरा गए. एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विथ एटम्स, they lose all the energy that they have gained due to acceleration because of electric field. तो जैसे ही एटम से कोलाइड करते हैं, the whole energy gets lost. इलेक्ट्रॉन फिर से फ्रेश स्टार्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करती है, फिर वो कहीं जाके टकरा जाता है, वो अपनी एनर्जी फिर से खो देता है. सो रिलैक्सेशन टाइम इज स्मॉल मीन्स देयर इज लेस टाइम फॉर एक्सेलरेशन. इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एबल टू गेन दैट मच ऑफ स्पीड. उनकी स्पीड बढ़ नहीं पाती ज़्यादा. द ड्रिफ्ट स्पीड डिक्रीजेस. टेम्परेचर बढ़ने से रैंडम मोशन की स्पीड बढ़ गई, कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगे. एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड उनको एक्सेलरेट करती है, उसके लिए टाइम कम हो गया. तो बहुत कम समय तक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ और फिर टकरा गया. तो जल्दी जल्दी टकराने की वजह से, एक्सेलरेशन का टाइम इंटरवल कम होने की वजह से ओवरऑल उनकी जो एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड है, जो पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव करने की स्पीड है, वो डिक्रीज हो जाती है. और जैसे ही ड्रिफ्ट स्पीड कम होगी, इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाएगा. इलेक्ट्रिक करंट कम हुआ तो हम कहते हैं मटेरियल का, वायर का रेजिस्टेंस बढ़ गया. चलिए मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं समझने के लिए कि विथ राइज इन टेम्परेचर the frequency of collision of the electrons increases. This implies that relaxation time, which we denoted by tau in our last class, decreases. Right? When relaxation time decreases, it results in lower drift speed. The drift speed decreases. When the drift speed decreases, current will get reduced. Current reduces, and when the current reduces, we say that resistance has increased. देखो, अगर इस पीस ऑफ वायर या इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस आ रहा है और ये V वोल्ट की बैटरी है, तो हम सभी जानते हैं ओम्स लॉ से दैट करंट इज इक्वल टू V बाय R. तो अगर करंट रिड्यूस हो गया, V तो फिक्स्ड है, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज फिक्स्ड. इफ द करंट हैज डिक्रीज, व्हाट कुड बी द रीजन? वी विल वेरी मच से दैट रेजिस्टेंस हैज इंक्रीज्ड. तो रेजिस्टेंस बढ़ गया इस वायर का अगर हमने देखा कि करंट कम हो गया एट सेम वैल्यू ऑफ V. मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस अगर मैं आपको रिकॉल करूं, इन बातों को मैंने अभी वर्ड्स में लिखा है, और मैथमेटिकली इसी बात को अगर आप देखना चाहें तो वो भी आसान है, वेरी इजी.
अगर आप रिकॉल कर सकें कि हमने सबसे पहले ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला बनाया था, ड्रिफ्ट स्पीड ई बाय एम इंटू टाउ। टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मीट ऑफ द मटेरियल है, और एम इलेक्ट्रॉन का मास है। फिर हमने लिखा था, इफ यू कुड रिकॉल, दैट करंट डेंसिटी इज एन ई वी डी, और करंट थ्रू द वायर इज ए टाइम्स एन ई वी डी। ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस वायर, ऐसा लिखा था हम लोगों ने। नाउ दिस करंट इज, in place of Vd, if you substitute this, it becomes E square E m n, ये Vd की जगह ये सब्सटीट्यूट करना है, टाउ ए, और E को बाहर लिख लो ऐसा। Vd की जगह मैंने लिख दिया ये क्वांटिटी, तो ये बन गया ई स्क्वायर, कैपिटल ई यहाँ, स्मॉल एम नीचे, एन ये टाउ ए, यू कैन राइट इट लाइक दिस। फिर हम लोगों ने इसी बात को लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने लिखा था V बाई एल। V क्या है? अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। L क्या है? इस कंडक्टर की लेंथ। तो यहाँ से यहाँ जाने पे V वोल्ट का ड्रॉप हुआ, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज V डिवाइडेड बाय L। इसी को रीअरेंज कर दिया तो हमें मिला V इज इक्वल टू I इंटू दिस होल क्वांटिटी। सो ऐसा लिख देता हूं, ऐसा। अब ये जो नंबर है ये बेसिकली हमारे उस वायर का रेजिस्टेंस है, और ये मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूं, ये सब हम पिछली क्लास में लिख चुके हैं, इफ आई एम राइट। ये सब कुछ हम पिछली क्लास में लिख चुके हैं। और V इज इक्वल टू आई आर, जहां R स्टैंड फॉर एम एल ई स्क्वायर एन टाउ ए। फिर इसको हमने लिखा था एम ई स्क्वायर एन टाउ, ये क्वांटिटी एल बाई, ये जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है इसको हमने कहा था रेजिस्टिविटी। सो R इज इक्वल टू रो एल बाई। आप पिछली क्लास में जो पढ़ा था अपने नोट्स को वापस एक बार पलट के देखिए, यू विल रियलाइज कि आपने यही लिखा था, रेजिस्टिविटी इज m डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ। सो what happens when temperature is increased? When temperature is increased, look at this resistivity. Will the mass of electron change? No. Will the charge on electron change? No. Number of electrons per unit volume, will it change? If the temperature change is small, it will also not change. For example, in copper, the number of free electrons per meter cube volume is around 10 to the power 29. So that is a constant number until and unless there is very huge change in temperature. So ignoring the fact that there could be a huge change in temperature, just ignore it and let us assume that temperature changes are small. So number of electrons per unit volume, this number is also a constant. Mass of electron is constant, E is constant. What about tau? Answer is, with rise in temperature, this tau, अभी लिखा आपने, with rise in temperature frequency of collision increases and therefore relaxation time decreases. So with rise in temperature, tau decreases.
with rise in temperature. And when tau decreases with rise in temperature, obviously rho increases with rise in temperature. राइट? तो मोटी बात, आपसे स्कूल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड. तो आप ऐसा आंसर लिख सकते हैं कि विद राइज इन टेम्परेचर द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस. दिस लीड्स टू डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम, which in turn means that drift speed decreases, which in turn means that current reduces. It is all the same. आप यहाँ से सोच सकते थे टाउ डिक्रीज हुआ तो ड्रिफ्ट स्पीड घट गया. ड्रिफ्ट स्पीड करंट से ऐसे रिलेटेड, ड्रिफ्ट स्पीड घट गया तो करंट घट गया. जब करंट डिक्रीज हो गया तो हम बोलते हैं आर बढ़ गया, इसलिए करंट डिक्रीज हो गया. या आप बोल सकते हैं कि भाई the resistivity of the material is given by this expression. देखिए सब everything is same actually. आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि resistivity is given by this expression. So with increase in temperature, tau decreases. If tau decreases, resistivity increases. So answer could be as small as this also. तो major मोटी बात, with rise in temperature, resistivity of conductors increases, conductivity decreases. Reverse is true with fall in temperature. With fall in temperature, the resistivity will decrease. With fall in temperature, resistivity will decrease means it will become even better conductor. Resistivity घटने का मतलब इस पीस ऑफ कंडक्टर का रेजिस्टेंस घटने लगा. टेम्परेचर कम करने से इसी पीस ऑफ मटेरियल का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी. हम आगे, अभी मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता कि अपार्ट फ्रॉम इंसुलेटर एंड कंडक्टर देयर इज अ थर्ड क्लास ऑफ मटेरियल which is used extensively nowadays in all electronic circuits. That material is known as semiconductor. सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर के जैसी अच्छी नहीं होती और इंसुलेटर के जितनी खराब भी नहीं होती, बीच बीच की होती है, ना बहुत अच्छी ना बहुत खराब. ऐसे मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं. सेमीकंडक्टर मटेरियल में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता नहीं है, घटता है. मेटल में, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टिविटी बढ़ रही है. सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस कम हो जाता है. ऐसा क्यों होता है ये हम जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे उस समय डिस्कस करेंगे. पर वहाँ भी ये इवेंट होता है जो अभी आप बोर्ड पे देख रहे हैं. टेम्परेचर बढ़ाओगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जल्दी टकराएंगे, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा. रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी. देखो empirical relationship says that resistivity of a conductor changes almost linearly with temperature if the change in temperature is small. So resistivity of conductors changes linearly with change in temperature for small temperature changes.
resistivity changes linearly. What does it mean? ये empirical relationship means ऑब्जर्वेशन बेस्ड फैक्ट है. एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पे हम ये एस्टैब्लिश कर पाते हैं कि जैसे कॉपर है, कॉपर का रेजिस्टिविटी मान लो किसी टेम्परेचर पे रो नॉट है. फॉर एग्जांपल लेट अस से 0 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर की रेजिस्टिविटी रो नॉट है. एट सम हायर टेम्परेचर वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज गिवन बाय 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा. यहां क्या है? रो नॉट इज रेजिस्टिविटी एट let us say temperature theta naught. Rho is resistivity at some other temperature theta. So delta theta is change in temperature, that means theta minus theta naught. For example 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टिविटी है रो नॉट, 30 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टिविटी है रो. सो रो रेजिस्टिविटी एट 30 डिग्री सेल्सियस is rho naught resistivity at 0 degree Celsius multiplied with 1 plus alpha delta theta. What is delta theta? 30 degree minus 0 degree, 30. It doesn't make any difference whether you consider temperature in degree Celsius or Kelvin, because the change in temperature remains same. Value of change in temperature remains same in both these scale. 30 degree Celsius change in temperature is same as 30 Kelvin change in temperature. So change in temperature is something which is same in both these scales, the absolute scale as well as degree Celsius scale. This alpha is a constant known as temperature coefficient of resistivity of the material. This alpha is a constant which is known as temperature coefficient of resistivity of the given material. Alpha is known as temperature coefficient of resistivity of the given material. This alpha itself is temperature dependent. The fact is, ये जो अल्फा है ये भी टेम्परेचर के साथ बदल सकता है. बट ओके, फॉर स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस we will ignore those kind of things and we will just assume that for small temperature changes this formula just tells you how the resistivity of a material changes. Now think of this situation. This is a piece of metal wire at temperature theta naught, resistivity is rho naught. So what is resistance of this piece of wire? At temperature theta naught, resistance is equal to rho L by A. Now let us assume temperature is changed to some other value theta. Now the temperature has been changed. When you change the temperature, it is a well-known fact that length of this wire will change. The cross-sectional area will also change. And the resistivity will also change. As we have learned right now, if temperature is changed from theta naught to theta, the value of resistivity changes from rho naught to rho. If the change in temperature is small, this rho is the dominant change. I mean, yes, L will change, A will change, but that change does not make a significant difference to value of resistance of this wire. इस वायर का जो रेजिस्टेंस है रो एल बाई ए, टेम्परेचर बदलने से एल भी बदला, ए भी बदला, और ये रेशियो में उतना बड़ा चेंज नहीं होता कि रेजिस्टेंस की वैल्यू इसकी वजह से बदल जाए. बदलेगा, बट
वेरी स्मॉल अमाउंट. रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा बदलती है बिकॉज ऑफ चेंज इन रो नॉट. आप ऐसा बोल सकते हैं ये जो रो नॉट है इट इज़ मोर टेम्परेचर सेंसिटिव. टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस चेंज करने से रो नॉट में एक अच्छा खासा चेंज हुआ रो की वैल्यू में, बट एल बाई ए की वैल्यू में उतना कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ. फॉर सिंप्लिसिटी ऑल्सो वी विल इग्नोर दैट देर इज एनी चेंज इन डायमेंशन ऑफ द वायर. टेम्परेचर थीटा नॉट से थीटा कर दिया गया. जस्ट इग्नोर that there is change in length and cross sectional area of the wire. Just ignore. So, ignoring change in L and A, the new resistance of the given sample of wire is rho L A. प्लीज ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं. ये वायर है, इसकी लेंथ ए थी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था, रेजिस्टिविटी रो नॉट थी. दिस वायर इज एट टेम्परेचर थीटा नॉट, सो इट्स रेजिस्टेंस इज रो नॉट एल बाई ए. अब टेम्परेचर को चेंज कर दिया. नाउ द वायर इज एट टेम्परेचर थीटा, सम अदर टेम्परेचर. सच्ची बात यह है कि एल भी बदला, ए भी बदला, रो भी बदला, पर एल और ए में बहुत छोटे चेंज हुए. ऐसा सोचो एल बाई ए की वैल्यू में बहुत छोटा चेंज हुआ है और उसकी वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा. रेजिस्टेंस की वैल्यू मेनली बदलेगी क्योंकि रो बदल गया. तो ये रीजनेबल है अगर हम ऐसा सोचें कि एल और ए की वैल्यू नहीं बदली. जस्ट इग्नोर दैट एंड जस्ट थिंक दैट रो हैज चेंज. रो एक ऐसी चीज है जो डेफिनेटली बदल गई टेम्परेचर बदलने से. सो द न्यू रेजिस्टेंस विल बी न्यू वैल्यू ऑफ रो इनटू एल बाई ए. वी आर अज्यूमिंग दैट एल एंड ए रिमेन्स सेम. सो द न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी रिटन एज न्यू वैल्यू ऑफ रो. व्हाट इज न्यू वैल्यू ऑफ रो? अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, न्यू वैल्यू ऑफ रो इज रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा एल बाई. ऐसा हमने क्या किया, ये जो नया रो है मटेरियल का वो किसके बराबर होगा? जो ओरिजिनल रो था रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा. व्हाट इज डेल्टा थीटा? चेंज इन टेम्परेचर. इस एग्जांपल में कितना है डेल्टा थीटा? थीटा माइनस थीटा नॉट. जैसे ये 10 डिग्री सेल्सियस था, ये 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो चेंज इन टेम्परेचर इज 20 डिग्री. So, the new value of resistance can be written as, ध्यान देना, रो नॉट एल बाई ए क्या चीज है? दिस रो नॉट, दिस एल, दिस ए. व्हाट इज रो नॉट एल बाई ए? इट इज द ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा. क्या पढ़ा रहा हूं मैं भाई? मैं ये बता रहा हूं आपको, रो जो है रेजिस्टिविटी, इस वायर की रेजिस्टिविटी इतनी है. ये स्टेटमेंट मीनिंगलेस है. रेजिस्टिविटी मटेरियल स्पेसिफिक. कॉपर की रेजिस्टिविटी इतनी है, ओके, एल्युमिनियम की इतनी है, मीनिंगफुल सेंटेंसेस. लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है इट इज स्पेसिफिक टू अ गिवन स्पेसिमेन. इस गिवन वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है. यस, दिस इज मीनिंगफुल. लेकिन कॉपर का वायर, अगर कॉपर का वायर इसका 10 ओम रेजिस्टेंस है, कॉपर का वायर इतना बड़ा ले लें तो रेजिस्टेंस बदल गया. तो कॉपर का रेजिस्टेंस 10 ओम होता है, ये तो मीनिंगलेस है. कॉपर के इस वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है और कॉपर के इस वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम है. ये मीनिंगफुल है. रेजिस्टिविटी, कॉपर अगर है तो ये वायर इतना बड़ा है या इतना बड़ा है, रेजिस्टिविटी तो एक ही होगी बिकॉज द मटेरियल इज सेम. रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ ऐसे बदलती है. अब अगर एक गिवन पीस ऑफ वायर है, उसका रेजिस्टेंस इतना था, टेम्परेचर बदलने से अब नया रेजिस्टेंस बेसिकली इसलिए है, रेजिस्टेंस इसलिए बदला क्योंकि रो बदल गया.
एल और ए में चेंज को हम निग्लेक्ट करें, तो टेम्परेचर को बढ़ा दिया या घटा दिया न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी गिवन बाय न्यू रो एल बाई ए, नए रो की जगह पे लिखेंगे रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, एल बाई। ठीक। रो नॉट एल बाई ए क्या होता है? आर नॉट, आर नॉट क्या है? ओरिजिनल रेजिस्टेंस, सो आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। मोटी मोटी बात ये हुई कि टेम्परेचर चेंज के साथ रेजिस्टिविटी ऐसे बदलती है, और गिवन कंडक्टर के डायमेंशन में, वायर के डायमेंशन में चेंज को अगर नज़रअंदाज करें, उसकी लेंथ, उसकी थिकनेस में चेंज को अगर इग्नोर करें, तो एक गिवन स्पेसिमेन का, एक वायर के स्पेसिमेन का, एक सैंपल का रेजिस्टेंस इस रिलेशनशिप के हिसाब से बदलता है। तो रेजिस्टेंस चेंजेस अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप, रेजिस्टिविटी changes according to this relationship. अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका यूनिट क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। 1 इज ए डायमेंशनलेस नंबर, ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। एक डायमेंशनलेस नंबर के साथ किसी डायमेंशन वाले क्वांटिटी को नहीं जोड़ सकते। तो ये भी एक नंबर है। डेल्टा थीटा डिग्री सेल्सियस है, तो अल्फा क्या हुआ? पर डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो ये पर डिग्री सेल्सियस और ये डिग्री सेल्सियस, तो यूनिट खत्म हो गया। यू आर लेफ्ट विथ अ नंबर ओनली। अ हॉट लिक्विड and its resistance rises to 11.5 ohm. Find the temperature of the liquid. It is given that temperature coefficient of resistivity of the material of the wire is 4 into 10 to the power minus 3. 4 into 10 to the power minus 3 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। एक ऐसा वायर है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इतनी है। इस वायर का रेजिस्टेंस 20 डिग्री सेल्सियस पर 10.0 ओम है। When it is dipped in a hot liquid, that means when it is kept at some higher temperature, the value of resistance of this wire changes to, at some unknown high temperature theta, the value of resistance changes to 11.5 ohm. So what is value of this theta? जिस लिक्विड बाथ में इस वायर को डुबाया गया है, उस लिक्विड बाथ का टेम्परेचर क्या है, ये पूछा जा रहा है। सो इट इज अ प्लेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, यू ऑल कैन आंसर। What we are supposed to do is, we are supposed to use this relationship to find delta theta. What is given? The changed resistance is 11.5, the original resistance is 10, alpha is 4 into 10 to the power minus 3, and delta theta is to be calculated. Very simple. It is 1.15 minus 1, 0.15 is 4 into 10 to the power minus 3 delta theta. So delta theta is 150 by 4, I guess. So this is almost 38 degrees Celsius. So temperature was changed by 38 degrees Celsius. So it means that the final temperature must be 20 plus 38. This change in temperature. So the temperature of the wire has definitely been increased to 58 degrees Celsius.
So that change is 38 degrees Celsius and the resistance has changed from 10 ohm to 11.5 ohm. So with this much of introduction to resistance, let us move on and try to understand the heating effect of electric current. I think we already understand why a wire heats up when an electric current passes through it. Electric current is passed through it. Why a wire gets heated up? There are randomly moving electrons inside any piece of conductor. When that conductor is connected to a battery, that means a potential difference is applied across it. An electric field is established inside the conductor, which accelerates all the free electrons. Because of that, overall the cloud of electron will acquire some kinetic energy, extra kinetic energy. वो जो random motion है उसको किनारे करो. उसके अलावा because of continuous force due to electric field, the whole group of electrons will find that the kinetic energy of the entire group has increased. But those electrons very quickly collide with neighboring atoms. एक एटम से टकराए, इलेक्ट्रिक फील्ड ने धक्का दिया, थोड़ी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी कि दूसरे एटम से टकरा गए. So frequency of collision increases and the electrons gain kinetic energy and collide. Gain kinetic energy and collide. In every collision, they lose the kinetic energy that they have gained. एक इलेक्ट्रॉन ने जो काइनेटिक एनर्जी गेन की है, it will tend to lose that kinetic energy when it collides with the atom. तो वो जो ठोकर लगी, उसमें इलेक्ट्रॉन ने अपनी काइनेटिक एनर्जी जो गेन की थी वो खो दी. तो वो जो मेटल लैटिस है, उसमें जो एटम्स हैं, उनको काइनेटिक एनर्जी एक तरह से दे दी. तो वो एटम्स ज़्यादा विगरसली वाइब्रेट करने लगे. वो सभी एटम्स पहले भी ऑसिलेट कर रहे होते हैं. लगातार इलेक्ट्रॉन के कोलिजन की वजह से उनके ऑसिलेशन की एनर्जी बढ़ जाएगी. तो जब भी किसी मटेरियल में जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी पॉजेस करते हैं, वो बहुत विगरसली अगर ऑसिलेट कर, तो वो मटेरियल हॉट ऑब्जेक्ट है. अगर मैंने इसको टच किया और मुझे गर्म लगा, इसका मतलब इसके जो एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर वाइब्रेटिंग विगरसली विथ ट्रिमेंडस काइनेटिक एनर्जी. इसको टच किया, ये कोल्ड है, तो रिलेटिवली ये जो मॉलिक्यूल्स और एटम है, they are vibrating with lesser kinetic energy. So I will write it in two sentences that when an electric field is applied, the electrons in a conductor, free electrons लिखिएगा, free electrons in a conductor acquire extra kinetic energy, the electrons lose this kinetic energy when they collide with atoms. This energy appears as heat. There are moles and moles of electrons which are continuously gaining energy and losing them. When there is an electric field inside the metal,
there are moles and moles of electron which continuously gain energy and lose. So थोड़ा थोड़ा एनर्जी लूज कर रहे हैं पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लूज किया, फिर से गेन किया, फिर से लूज किया, फिर से गेन किया, फिर से लूज किया, और ऐसा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है. सो ओवरऑल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड कैन बी वेरी हाई. So when an electric current flows through a conductor, the conductor gets heated up. This is a well known fact. Many devices work on this principle. Whether it is electric iron or electric heater which is used for cooking, or many other such devices, geyser, all these devices, the incandescent bulb, all these devices work on the same principle, that when an electric current flows in a wire, conducting wire, heat and light is generated. अभी आप शायद थोड़ा समझने में तकलीफ होगी, but I'll add here that a certain amount of energy may also get liberated as light. We will study later on in electromagnetism that when a charged particle is accelerated, light is produced. So electrons are accelerated, and when they hit the atoms, they get retarded. Huge retardation is there. So accelerating charged particles also produce light. So the energy gained by the electrons is lost as heat as well as light. So appears as heat oblique light. ऐसा लिखते रहो. Well, just imagine this simple circuit. This is a resistor. ये अब symbolic representation है. I am no longer drawing a resistor like this. Okay, this could be a copper wire, but I am symbolically representing it with this symbol. This is a resistor. It can be a carbon resistor as well, which are used in electronic circuits. You connect this to a battery, 3-volt battery. We all know that current is V by R. We all know that. This is a standard. That Ohm's law. The current will be equal to V by R. Now, let us try to study the energy transfer mechanism in this circuit basically. The battery, let us say it is a chemical cell, it is continuously losing energy, and the resistance is a device which is continuously converting this energy into heat and light. देखो, हमने पढ़ा था एक कैपेसिटर को अगर एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी ने इसको एक शॉट में चार्ज दिया Q माइनस Q, और उसके बाद सब कुछ स्टैटिक हो गया. जब तुमने कैपेसिटर को चार्ज किया तो Q चार्ज बैटरी से फ्लो हुआ और बैटरी ने V इंटू क्यू वर्क किया. इसकी केमिकल एनर्जी V इंटू क्यू कम हो गई. बस दैट्स ऑल. नाउ एवरीथिंग इज स्टैटिक. बैटरी इज नो मोर लूजिंग एनी एनर्जी. बस कैपेसिटर को चार्ज करते समय इट लॉस्ट सम एनर्जी. आफ्टर दैट इट इज नो लॉन्गर लूजिंग एनी एनर्जी. बट इन दिस सर्किट देयर इज नॉट ए वन शॉट इवेंट. इट इज नॉट लाइक कि बैटरी ने एक बार चार्ज दिया और खत्म कहा. द चार्ज इज कंटिन्यूअसली फ्लोइंग. सो डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिचुएशन इज, यहां पे इंस्टेंटेनियसली बैटरी ने कुछ एनर्जी खोई, चार्ज दिया और सब कुछ रुक गया. नाउ नो लॉन्गर फ्लो ऑफ चार्ज इज देयर. बट हियर इन a circuit which is having current, there is continuous movement of charge. So battery is continuously losing energy. Continuously. Look at this. If the current is I, let us consider a time interval of delta t. In delta t time interval, the quantity of charge that will flow past this battery is I into delta t. Charge flow
in interval delta t is I into delta t. Now, basically current is rate of flow of charge, delta q by delta t is current. तो अगर मैं एक डेल्टा टी सेकेंड का इंटरवल लेता हूं So how much charge will pass in this circuit? तो एट एनी पॉइंट, आई मीन इस पॉइंट से कितना चार्ज पास हुआ, या इस पॉइंट से कितना चार्ज पास हुआ, या इस बैटरी के थ्रू कितना चार्ज पास हुआ, या इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना चार्ज पास हुआ, सभी क्वेश्चन का एक ही आंसर है, एवरीवेयर द करंट इज आई. So any you take any cross section here, Yes, the amount of charge flowing through this cross section in time delta delta t is I into delta t. So बैटरी से भी इतना ही चार्ज पास हुआ I into delta t. और हम सभी जानते हैं कि अगर बैटरी से इतना चार्ज पास हुआ तो वर्क डन बाय बैटरी is delta q into v. what is delta q? I delta t. डेल्टा क्यू की जगह मैंने लिख दिया I into delta t. This is work done by battery in a time interval of delta t. This is work done by battery in time interval delta t. So if I ask you What is power supplied by the battery? power is rate of doing work. Power supplied by the battery. Power supplied by the battery or the cell. P battery. Power is rate of doing work. Battery has performed so much of work in time interval delta t. इतने जूल केमिकल एनर्जी खर्च हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई, कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में. So power is work done by battery divided by delta t. वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर. So the battery has performed a certain amount of work in a given interval of time, and power supplied by the battery, that means rate at which battery performed work, Can be calculated as work divided by delta t. So this is the work done by battery. that divided by delta t means V into I. So this means that power supplied by the battery is V into I. What will be unit of power? Unit of work done is joule divided by time, joule per second, which is also known as watt. इस सर्किट में प्लीज ध्यान दीजिए, चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है. हर एक सेकंड में बैटरी कितने जूल वर्क कर रही है? आंसर है V into I. ये बहुत सिंपल है, ऐसे मेंटली सोच सकते हैं. हर एक सेकंड में कितना चार्ज बैटरी से पास हो रहा है? आई. करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. एक सेकंड में कितना चार्ज पास हुआ? 2 कूलम पर सेकंड, दैट इज 2 एम्पियर करंट. So if current is 2 ampere means 2 coulomb charge is passing through the cell every second. So how much work is being done by the cell every second? V into 2 coulomb per second, 2 ampere. So V into I is the rate of work done by the battery. ये केमिकल एनर्जी इस रेट से लूज कर रहा है बैटरी. वेयर इज दैट एनर्जी गोइंग? एक्चुअल में जैसा हमने आपको पानी के टंकी वाला एनालॉजी दिया था, यहाँ जो चार्ज है, ये ऐसा सोच सकते हो कि थका हुआ है लो पोटेंशियल पे, इसको उठा के हाई पोटेंशियल वाले टर्मिनल तक रखना है, इसके लिए एनर्जी चाहिए. लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल टर्मिनल पे चार्ज को ट्रांसफर करने में बैटरी ने वर्क किया. लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे चार्ज को ट्रांसफर करने में बैटरी ने वर्क किया. लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर चार्ज को ट्रांसफर करने में बैटरी ने वर्क किया. इस ऑब्जेक्ट को लो पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट से हाई पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट में ले जाने में मुझे वर्क करना पड़ता है. जब डेल्टा क्यू चार्ज यहाँ से यहाँ गया, उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई. वो बढ़ाने के लिए बैटरी ने अपनी केमिकल एनर्जी सैक्रिफाइस की. तो जब डेल्टा क्यू चार्ज इमेजिन करो यहाँ से यहाँ आया, तो उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ चुकी है. लेकिन जब वही चार्ज इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, क्या कर रहा है, क्या सर्किट में चल रहा है? ये थका हारा चार्ज लो पोटेंशियल एनर्जी पे, बैटरी ने उठा के उसकी एनर्जी बढ़ा दी हाई पोटेंशियल एनर्जी पे. हाईली एनर्जेटिक चार्ज जब इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है
तो वहाँ डिशुम 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 लगातार कोलिजन, चार्ज का कोलिजन एटम्स के साथ, उसमें वो जो उसके पास बैटरी ने एनर्जी दी थी, एक्स्ट्रा एनर्जी, वो एनर्जी हीट और लाइट में कन्वर्ट हो गई। और जब चार्ज इसको क्रॉस करके यहाँ आया तो फिर से थका हारा है, उसने सारी एनर्जी खो दी। अब बैटरी फिर से उसको एनर्जी देगी, हाई पोटेंशियल पे रखेगी, अब चार्ज एनर्जेटिक हो गया, अब वो एनर्जेटिक चार्ज जाके रजिस्टर में डिशुम 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 करेगा, जिससे हीट डेवलप होगा, चार्ज की सारी एनर्जी खत्म हो गई ऐसा सोचो। फिर से थका हारा चार्ज बैटरी के पास आया, बैटरी ने एनर्जी दी, फिर से वो रेजिस्टेंस में गया और डिशुम 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 करके चार्ज एनर्जी खो देता है, फिर से ये साइकिल चलता रहेगा। तो बैटरी कंटिन्यूअसली वर्क कर रही है, और बैटरी जो वर्क कर रही है वो कहाँ जा रहा है, अल्टीमेटली रेजिस्टेंस में हीट और लाइट के फॉर्म में कंज्यूम हो जा रहा है। जब ये चार्ज रेजिस्टेंस में करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। ये रेजिस्टेंस का टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे है और ये टर्मिनल लो पोटेंशियल पे है। ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। यहाँ से यहाँ जाने पे V वोल्ट पोटेंशियल घट गया, तो जो चार्ज हाई पोटेंशियल पे था वो जब यहाँ पहुँचा तो लो पोटेंशियल पे आ चुका है, उसकी सारी एनर्जी खो चुकी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रेजिस्टेंस एक डिवाइस है जिसने चार्ज की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। सो बैटरी चार्ज को पर सेकंड इतने जूल एनर्जी दे रही है, और यही एनर्जी रेजिस्टेंस में जाकर हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, हीट और लाइट में कन्वर्ट हो जा रहा है। पावर सप्लाइड बाय द सेल और द बैटरी is converted into heat and light in the resistor. ठीक है, we say that power dissipated in the resistance is power dissipated in resistance R is V into I. बैटरी पर सेकंड V into I जूल वर्क कर रही है, वो सारा वर्क डन अल्टीमेटली इस रेजिस्टेंस में हीट और लाइट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो पर सेकंड रेजिस्टेंस में इतनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, देखिए अगर ये रेजिस्टेंस है और यहाँ करंट आई है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, I into R. So V can be replaced with I into R and this equation becomes I square into R. अगर V को तुम I into R लिख दो तो ये I square R हो गया। Similarly we can choose to replace I with V by R. I को V by R लिख सकते हैं तो ये V square by R हो जाएगा। तो power dissipated in resistance can be expressed using any of these formulae. अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V है और इसमें करंट I है तो V into I is the power dissipated. एक्चुअली पावर का ये एकदम यूनिवर्सल फॉर्मूला है। दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है और करंट I है, और पावर डिसिपेटेड इज V into I. रेजिस्टेंस के बारे में जब बात हो रही है तो V इज ऑफ कोर्स I into R, तो V की जगह पे हम IR लिख सकते हैं, इट बिकम्स I square R. और जब आप इस एक्सप्रेशन को V और R के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहें तो I को आप V by R लिख सकते हैं, तो इट बिकम्स V square by R. इस चीज़ को यूज़ करके जैसा मैंने कहा कि आप बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, गीज़र, इनकैंडेसेंट बल्ब, जो वो टंगस्टन फिलामेंट वाला बल्ब होता था, अब तो LED बल्ब आ गया, और जो टंगस्टन फिलामेंट वाला बल्ब होता था अभी भी होगा काफ़ी घरों में, वो बल्ब इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके काम करता है। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको मैं एक होमवर्क देना चाहता हूँ
रेजिस्टेंसेज इन सीरीज एंड पैरेलल, ये आपने जूनियर क्लास 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, प्लीज़ उसको रिवाइज करके आइएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत सारे रेजिस्टेंस हों, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये डेरिवेशन मैं नहीं करूँगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर बहुत सारे रेजिस्टेंसेज हों, उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं ये डेरिवेशन भी मैं नहीं करूँगा। आई एम एज्यूमिंग कि आप खुद पढ़ लेंगे, और प्लीज़ इंश्योर कि उसको पढ़ के ही अगली क्लास अटेंड करें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।